So लिखो, राइट, why contradictory stand या why contradictory approach ईरान में ना, इसी में लिख लो ऐसे समझने के लिए. why contradictory approach on nuclear question between North Korea and Iran. राइट, पहला पॉइंट, राइट, दो Trump's foreign policy is known for its uncertainty and is considered as a curious mix of tariff, threat and Twitter. Right, yet Trump tariff, threat and Twitters से डिफाइन होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, मतलब कॉकटेल ऑफ दिस, राइट, राइट. बट फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री is based on long-term interests, full stop, right. If we see superficially, policy may appear contradictory, but if we see in depth, Trump's approach to Iran show furtherance of USA's grand strategy. Right, the grand strategy is maintaining US hegemony, and at present the biggest threat is China, and thus containment of China. देखो, राइट, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अयूब, Trump's policy to pull out of the deal which was working, comma, decision to impose new sanctions on Iran, comma, bringing measures like CAATSA, CAATSA ही है ना, CAATSA, are driven by multiple aims
फर्स्ट लिखो राइट, countering Obama's approach in dealing with Iran, which it feels benefited USA's adversaries and weakened its allies. Second point, adversaries चाइना या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, सीरिया और राइट, ईरान गेटिंग मोर फ्री हैंड in sponsoring terrorism in the Middle East, comma, China has been the biggest beneficiary next second point लिखो राइट, राइट, ईरान इज लिखो राइट, ईरान इज a major piece in the larger chessboard in the new great game comma, right, great game with China full stop, right, the China's most important project of Eurasia's integration. Right. Next point लिखो right. Iran is not important. Next लिखो, Iran is not important for its energy resources, but primarily because of its location. Right, Iran is the most important link in Eurasian integration, both from the perspective of containment of China comma, Russia and even Europe. Right, it will have most important role in preventing not only the rise of Eurasian adversary, but managing the challenge of Islamic world. Right, hence Trump policies
which will gain benefits in destabilizing the Middle East. Comma, will work better not when sanctions are removed. Comma, but when sanctions are imposed. अब लिखो एडवांटेज, राइट. Sanctions will challenge the legitimacy of the supreme leader in Iran, thus helps in achieving the aim of regime change. Point number 2, right? Sanctions will strengthen Iran's resolve to acquire nuclear weapons, to avoid the fate of Saddam Hussein. Next recall Iran's temptations to acquire nuclear weapons will legitimize Trump's rhetoric and expose Obama's follies. Obama's follies or mistakes. Next, it will create new arms race in the Middle East. Next, it may bring two of US allies together. That is Israel and Saudi Arabia. Next, it will strengthen the threat of Islamic fundamentalism. To Russia as well as China. कोई नुकसान? सैंक्शंस करने से नुकसान था, ओबामा ने क्यों किए? ओबामा को ये सब समझ में नहीं आ रहा था क्या? हाँ, लेकिन उस टाइम के लिए वो इम्पोर्टेंट था, बिकॉज at that point of time maybe in dealing with ISIS you needed cooperation. तो कंटिन्यूटी ही है, ठीक है. सैंक्शंस हटा के अभी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एवरी वे देयर इज अ एडवांटेज फॉर ट्रम्प, ठीक है. लिखो राइट. क्यों? ईरान से बातें करके क्या मिलेगा? ईरान से बातें कर
ईरान, यूएस का लॉन्ग टर्म एम क्या है? जो वहाँ पर इस्लामिक जो सुप्रीम लीडर है, रेजिम चेंज मेन है, तो उनके साथ बात करने का मतलब है उनको आप लेजिटिमाइज कर रहे हो, और अल्टीमेटली ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को यूज़ करना, ईरान के लोकेशन को यूज़ करना। तो हाँ, बट क्या होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जोसेफ नोगी का व्यू क्या है? इट्स ऑल क्वाजी निगोशिएशंस। तो तुम टॉक्स के लिए यू ऑलवेज गिव दोज पॉइंट्स विच द अदर पार्टी विल नेवर एग्री, so that it appears that you are interested in the deal but other is not. तो ट्रम्प जो भी पॉइंट्स प्रपोज किए थे that are not agreeable by, सबसे important तो सीरिया ही है, which Iran will never agree because Russia will never allow Iran to get agree. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखो, राइट। हमको लग रहा है ट्रम्प को हम यूएस वालों से ज़्यादा समझने लग गए हैं। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी मतलब बहुत ही अच्छी है। लिखो, राइट। हमारे ही मुंह से सुनते हो ना ऐसी बातें। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने आज तक नहीं कहा। हाँ, मैं तो उसकी किताब से एकदम इम्प्रेस हो गया था। ठीक है, लिखो, राइट। लिखो, व्हाट आर यूएसए's प्रपोजल्स? proposals to Iran to avoid sanctions. ट्रम्प को भी नहीं पता होगा उसकी पॉलिसी इतनी अच्छी जितनी हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कोई एनालिसिस ऐसी बहुत मिलती नहीं। पहला लिखो, इनके डिमांड्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, एंड 12 डिमांड्स हैं, 12 के 12 लिखने की जरूरत नहीं है ना, मेन लिख लो। फर्स्ट यही है, एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम। नेक्स्ट, एंड सपोर्ट टू हमास एंड हिजबुल्लाह। Houthis in Yemen. Next, end threatening behavior against US allies and its neighbors. Withdraw its forces from Syria. Close heavy water reactor. Stronger verification. So right, next, Iran is not in a position to accept any of these demands. ठीक है, तो right, hence no prospects of normalization of relations. ठीक है, अब लिखो, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन इंडिया एंड ईरान रिलेशंस। ठीक है, राइट। दो इंडिया इज यूएसए's strategic partner, yet
India has to bear the brunt of the collateral damages of Trump's policies whether it is a trade war or conflict in Middle East. Right, next paragraph. There is a paradoxical situation where India-US partnership is needed to further India's Act East policy as well as Look West policy. Right. However, at the same time, Trump's policies create adverse impact on both. Right. Trump's policies in West Asia not only strengthen Islamic fundamentalism, it also creates unnecessary pressure on India-Iran relations. Right, there is a similar scenario in Southeast Asia. Right, next, the present environment compels India right to take more pragmatic approach towards its own grand strategy. Its own grand strategy. That is the strategy of non-alignment. Full stop, right? Of course, it cannot pursue non-alignment in the form of equidistance, but it is forced to pursue non-alignment in the form of multiple alignment in the age of complex interdependence.
right? लिखो amidst, AMIDST, amidst the uncertainties generated by Trump's postures, right? India is doing right actions, comma, by mending its relations with China and Russia. Full stop, right? Prime Minister Modi's speech at Shangri-La once again give centrality to the concept of, right inverted commas, strategic autonomy. ठीक है, तो अभी जैसे नॉन अलाइनमेंट एज अ मूवमेंट आए तो वो नहीं, नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी का फिर से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो गया है, और इस बात का सिंबल है शांग्रीला डायलॉग, जिसमें मोदी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्ड भी प्रेफर नहीं करते थे, बट ही स्टार्टेड यूजिंग दिस वर्ड शांग्री इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थिंग. नहीं तो इंस्टेबिलिटी होगी, टेंशन्स होगा. अब जैसे यूएस चाइना में टेंशन हुआ तो चाइना इंडिया में वॉर की भी तो पॉसिबिलिटी है, प्लस हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट विल गेट अफेक्टेड. सब तरीके से पॉसिबिलिटी है ना. यूएस क्या कोशिश करेगा फिर, बेट एंड ब्लीड वाली पॉलिसी, और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, अगर किसी भी तरीके से वॉर या कुछ भी प्रॉब्लम हैपन्स इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर अस. कहीं भी हुआ तो यूएस ऐसे सिचुएशंस इनडायरेक्टली भी कर सकता है ना, कि जिसमें हम कंपेल कर हो जाए कन्फ्रंटेशन के. तो यूएस का क्या होता है, एक एनिमी पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, दूसरे एनिमी की तलाश चालू हो जाती है, क्योंकि अगर एनिमी नहीं होगा तो एक करेंगे क्या. इनका इतना एस्टेब्लिशमेंट है, रशिया खत्म हुआ तो चाइना खत्म हुआ तो इंडिया के अगेंस्ट चल देंगे. दे नीड एन एनिमी ऑल्सो ना, फिर मजा भी नहीं ऐसे क्या कुछ भी नहीं. मतलब एक वही तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है. यू लुक फॉर एन एनिमी, यू क्रिएट अ सिचुएशन, यू फोर्स अदर्स टू रिस्पॉन्ड. यूएस का मेन एम है हेजेमनी के जितने लोग चैलेंज करते चले जाए, सबको वीकेंड करते चले जाओ. तो इंस्टेबिलिटी, इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू बियर एनी वॉर विद एनी. तुम्हें क्या पता यूएस और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, इट कैन प्रोवोक पाकिस्तान, तो इट विल नेवर बी गुड. तो बेस्ट है हेजिंग एक्शंस. इसलिए टू कंट्रोल पाकिस्तान वी डोंट नीड USA. To control Pakistan, you need China, because China has more leverage on Pakistan, not USA. तो चाइना के साथ रिलेशनशिप बनाना, अब वही है ना, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है. यू हैव टू बी वेरी अडेप्ट, वही है ना, एडेप्टेशन. यू हैव टू बी फास्ट पावर, हाउ एजाइल यू आर. ठीक है, हाउ you know how to make alliances, how to make coalitions, art of making coalition and agility, this is needed at this point. So you have to be very fast to respond. Plus क्या है, India should leverage its position towards USA.
वी नीड यूएसए बट यूएसए ऑल्सो नीड्स इंडिया। तो इंडिया को पता होना चाहिए कि हमें अपनी पोजीशन लीवरेज कैसे करनी है, रशिया से, चाइना से, और एडवांटेज उठाना है। इस ऐसे सिचुएशंस आर नॉट चैलेंजेस बट दे आर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कोई कैंप एम फॉलोअर नहीं है। हम लोग फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेटेड इंटरेस्ट। We are not pursuing US interest, we are not pursuing China's interest, we are pursuing our interest. Peace in Korean Peninsula is India's interest. किसी और का इंटरेस्ट थोड़ी हम कल कैलकुलेट करके काम कर रहे हैं। Pardon? पीस स्टेबिलिटी रहेगी तो वॉर, बिजनेस रहेगा, ट्रेड रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। हमारी जो राइज किस पर डिपेंड करती है? अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, पीस चाहिए ना। पीस इज व्हाट इंडिया नीड्स द मोस्ट, बिकॉज यूएस चाइना तो ग्रो कर गए, अभी वी हैव टू ग्रो, सो वी नीड पीस। तो इसलिए हमारे स्टेक्स हैं इंटरनेशनल पीस में। और अनसर्टेनिटी प्लस, why do we need good relations with China? Because we should be able to leverage our position vis-a-vis USA. तो लीवरेजिंग चाहिए होती है, वही है फॉरेन पॉलिसी। कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बीजेपी के हो तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्ड यूज करो। ब्रजेश मिश्रा ये सब यूज करते थे, ठीक है, बस थोड़ा नेहरूवियन लीगेसी ना लगे, सब एक ही है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन? ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है, बिकॉज यू नीड ट्रेड, यू नीड इन्वेस्टमेंट, यू नीड डिफेंस। हर रिलेशन में ट्रांजैक्शन ही है, बिना ट्रांजैक्शन के कोई आ रहा है तुम्हारे पास? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तुम आते हमारे पास, हम तुम्हारे पास आते, ट्रांजैक्शन के बिना कुछ नहीं। ठीक है, चाहे साउथ कोरिया आ रहे, स्ट्रेटेजिक सेकेंडरी है, पहले ट्रांजैक्शनल ही होता है। ओनली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ है? अभी तो चाइना की भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। चाइना हैज बीन लुकिंग एट पाकिस्तान फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, रोड बेल्ट, ये सब आइडिया है ना। और अल्टीमेटली डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, बिकॉज चाइना की जो इस तरीके की पॉलिसीज हैं, लैंड ग्रैबिंग पॉलिसीज, पाकिस्तान में भी तो दे आर रियलाइजिंग। अब क्यों ऐसे इलेक्शन या क्या चेंज होगा, ये तो डिस्कोर्सेस हैं। मे बी पाकिस्तान के पास ये अभी ये नेसेसिटी हो दैट इट शुड लुक टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ चाइनीज एक्शंस। ठीक है, नॉट कंफर्टेबल विथ पाकिस्तान। तो हो भी सकता है कि पाकिस्तान कैन स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड इम्प्रूविंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। लिखो नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे लास्ट? यस, ये तो मतलब ये पोजीशन लेना है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि ट्रायंगल स्क्वाड में भी हो, ब्रिक्स में भी हो, रिक भी है, तो ये। और मोदी ने अपनी स्पीच में बहुत दिन बाद ये वर्ड यूज किया है शांग्रीला डायलॉग में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ ईरान फॉर इंडिया। Yeah. Banking facility, US pressure. तो हमारा तो बार्टर ट्रेड भी था because of US pressure, and we can, मतलब there is a gas trade with USA also started.
प्लस गल्फ हैज बिकम अ मेजर, हमारा तो लीडिंग सप्लायर इराक एंड सऊदी अरेबिया है, ईरान अभी 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो मतलब यू आर ट्राइंग टू गो फॉर बैलेंसिंग एक्शंस। न्यूक्लियर एनर्जी भी तुम्हारे पास आ ही रहा है, ईरान का इम्पोर्टेंस कम होगा, और रहा स्ट्रेटेजिक मतलब रोड एंड इंटरवेंशन, तो अगर चाइना भी बनाएगा तो क्या इंडिया को रोक थोड़ी देगा, और ईरान विल नॉट पुट ऑल इट्स बेट्स इनटू इंडियाज कार्ड ऑल्सो, इट्स एन एज ऑफ मल्टीपल अलाइनमेंट, ठीक है। तो लिखो राइट, और वो सारे भी स्टेटमेंट्स वहां पे लिखा है ना क्लास में, काशान वासान वाले हैं, वो याद है वाजपेयी वाले, वो सब यूज कर लेना। और एक और लिखो, इसमें लिखो इंट्रोडक्शन, हामिद अंसारी, राइट, आवर रिलेशंस विद ईरान हैज बीन बिल्ट carefully, as Iran is not just a supplier of energy, the biggest importance of Iran comes from the fact that Iran is a लैंड पावर, इम्फेसाइज कर दो लैंड पावर, उतना भी मैरीटाइम उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना यूरेशियन में इंपॉर्टेंस है, इज अ लैंड पावर ऑन द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान and alternative route to Afghanistan. ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखो, PR कुमारास्वामी, ये सब वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट्स हैं। PR Kumaraswamy, right, between Morocco in the west to Indonesia in the east, comma, Iran is the only Muslim country which can be recognized as regional power. Full stop लिखो, historically, culturally, geographically, closest among the countries of West Asia. नेक्स्ट लिखो, तालमीज अहमद, ये फॉर्मर शायद एम्बेसडर या डिप्लोमेट थे, तालमीज अहमद, ये सभी लोग वेस्ट एशिया एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। TALMIZ, अहमद, AHMED, अहमद, देखो राइट, इंडियाज रिलेशंस विद ईरान has deep strategic considerations.
right? Energy is secondary. Though Iran is a natural supplier, considering the proximity. Comma, yet the importance of Iran is with respect to access to Afghanistan and Central Asia, नेक्स्ट लिखो राइट श्रीनाथ राघवन, नहीं अब इनका अच्छा बाद में लिखते हैं, एनालिसिस है वो। तो ये सब तो इम्पोर्टेंस ऑफ ईरान है, और उसके बाद एक्चुअल स्टेट ऑफ ईरान, इंडिया ईरान रिलेशंस पर कुछ स्टेटमेंट लिखो। एक्चुअल स्टेट ऑफ इंडिया ईरान रिलेशंस। एक तो लिखो राजीव सीकरी, इनकी बुक का नाम लिखो द चैलेंज एंड स्ट्रेटजी, कॉलन रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। Right, since India's partition, comma, Iran's land contiguity, Iran's land contiguity with India had gone resulting into the loss of the strategic perspective and the failure of Indian policy makers that they have to look at Iran as a neighbor. नेक्स्ट लिखो इशरत अजीज, right, achieving full scope of Iran India partnership has been constrained because of extraneous factors, extraneous factor, EXTRANEOUS, extraneous factors मतलब बाकी वाले, for example US Iran relations, Iran Israel relations,
Gulf Iran relations. नेक्स्ट लिखो हर्ष वी पंत. Harsh V. Pant as well as Kabir Taneja and Kabir Taneja believe that strategic partnership is hyped. Partnership is hyped. हाइप दोनों ही के व्यूज मतलब अलग अलग आर्टिकल्स में. पहला बात राइट इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी फैक्टर इज ओवर स्टेटेड. नेक्स्ट there are divergences on strategic issues, on critical issues. Like Kashmir, Pakistan, Taliban at present. Next लिखो राइट explicit convergences and covert divergences. अच्छा इम्पोर्टेंस वालों में एक और इनका भी लिखो फिर मोहम्मद अयूब. ये बहुत लिखने लग गया सर. हाँ नहीं ईरान नहीं सपोर्ट करता. ईरान ने तो पाकिस्तान के कारण अपोज किया था. ईरान इज क्लोजर टू पाकिस्तान और देयर इज अ रीजन. अगर ईरान बदमाशी नहीं करता तो अपने कुलभूषण यादव बच जाते. कुलभूषण यादव को पकड़ाया किसने? ईरान नहीं तो पकड़ाया. और कुलभूषण यादव बच कैसे सकता है अगर ईरान सपोर्ट करे? क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम क्या है कि बलूचिस्तान से पकड़ा है. लेकिन अगर ईरान अगर ये एस्टैब्लिश कर दे ही वॉज देयर इन ईरान तो पाकिस्तान क्या करेगा? मतलब पाकिस्तान का फिर पोजीशन वीक हो जाएगी. तो कुलभूषण यादव के केस पर ही इतना इम्पोर्टेंट केस है जिस पर ईरान सपोर्ट नहीं कर रहा. कुछ भी नहीं करते मतलब ओवर्ट बातें हैं बस और कवर्ट डाइवर्जेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. और इस इस्लामिक वर्ल्ड में दे वांट टू बी लीडर. ठीक है. और वीकनिंग करना चाहेंगे ना पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में बैलेंसिंग. तो ईरान नहीं है इंडिया के साथ कभी भी. जब इस्लाम वो था शाह ऑफ ईरान तब यूएस के साथ थे. तब हमारे यूएस से अच्छे रिलेशन नहीं थे. मोहम्मद अयूब का एक लिख लो. इनका मतलब इन्होंने इम्पोर्टेंस बताइए. व्हाट? हाँ when they know that dialogue will not have any outcome, what is the harm in doing dialogue? नहीं, Iran criticized India. Iran still says that you have done wrong. Iran still says this. Huh? नहीं, that is there, but Iran always brings this point कि India's Qibla is Washington. ठीक है. और
they always say that India should not have voted against Iran. But fine, if India voted against Iran, then India should also grasp those opportunities where Iran should also learn that you are always stabbing from the back. So we also get some leverage. Anything can be interpreted different ढंग से कर सकते हो. कुल मिला के नहीं चाहिए ईरान. उनसे कहो अपना छाबार आबार बनाओ, जो बनाना बनाओ. मतलब यूएस के कॉस्ट पे नहीं चाहिए. अरे शिया सुन्नी उन्नी कुछ नहीं है, सब पैसा और पावर है. ठीक है, सब बेवकूफ बनाने गए पब्लिक को. लिखो जल्दी. हाँ, इन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है तो तुम लोग भी लिख लो. हाँ, एक तो लिखो राइट फर्स्ट. एनर्जी. एनर्जी में एक फर्स्ट है एडवांटेज, cheap because we save cost on shipping. cheaper है cost on shipping. Then Iran always offered credit, offered longest credit repayment facility. Next, Iran in general and Chabahar in particular is a golden gateway or excellent entry point. एक्सीलेंट एंट्री पॉइंट है. अब नेक्स्ट व्यू लिखो कबीर तनेजा. है नहीं समझे? हाँ, वो बीच में एक इनका भी लिख लो, मोहम्मद अयूब का. अभी ये सब लोग शॉर्ट कमिंग्स बता रहे हैं. कबीर तनेजा के पॉइंट्स लिखो, इनके अच्छे पॉइंट्स हैं. और इंडिया ईरान के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, किसने यूज किया मैं बता देती हूँ. पहले तो इनका लिखो कबीर तनेजा. इनका आर्टिकल लिखो द रियलिटी ऑफ इंडिया ईरान टाइज. Right first. Much has been written on possibilities, opportunities and benefits. ये हिंदू वाले लिखते रहते हैं, ऐसा पता नहीं. तुम लोग हिंदू ऐसे पढ़ा नहीं करो, मिंट पेपर पढ़ा करो, अच्छा पेपर है. मिंट पढ़ते हो? बेस्ट है. अभी तो बाकी सब बेकार हैं. कल परसों बहुत अच्छा आया था आयुष्मान भारत और बेसिक. हिंदू तो बंद ही, हमने तो बंद कर दिया. हाँ, मच हैज बीन रिटन ऑन पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट्स. फर्स्ट. सेकेंड लिखो छाबहार्स इंपॉर्टेंस इज ओवर स्टेटेड. Next, Chabahar to be seen through the lens of reality. Lens of reality में point number 1 लिखो. Iran proposed Gwadar and Chabahar
as sister port cities. Second, Iran invited Pakistan and Beijing, Pakistan and China, and never considered giving exclusive rights to India. नेक्स्ट लिखो राइट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद ईरान इज नॉट इजी. बहुत ही दुष्ट लोग हैं तो फॉर एनी कंट्री. स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद ईरान इज नॉट इजी फॉर एनी कंट्री. फुल स्टॉप. लिखो, इरानियंस आर एक्सट्रीमली श्रूड. कौन तुम्हारे घर के हैं वो? क्या दिक्कत? श्रूड किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी समझने के लिए वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटीट्यूड, ओरिएंटेशन, ये सब समझना बहुत जरूरी है. हाँ, एक्सट्रीमली श्रूड कॉमा वर्क्स टैक्टिकली. और श्रूड होना बुराई नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो अच्छी चीज है, होना चाहिए. Iran is extremely shrewd, works tactically and even brutally in diplomacy. Next. नेक्स्ट लिखो, ईरान फीड एंड थ्राइव्स ऑन टफ नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी. ईरान फीड एंड थ्राइव्स ऑन टफ नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी. फुल स्टॉप. राइट. ईरान्स डिमांड्स may not be easy for India to fulfill. Next, लिखो राइट. We cannot just bank on history and culture. Iran needs cash. नेक्स्ट लिखो राइट. इंडिया कैन नॉट एफोर्ड टू एंटागनाइज यूएसए बियॉन्ड अ पॉइंट. रीजन क्या है? फर्स्ट, लीडिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. Next, enhancing India's capabilities vis-a-vis China. Next, source of high technology. Next, India's global ambitions. Right, next paragraph. क्या पे करेंगे? हैं? क्या पे करेंगे? तो हम लोग कहाँ चाबार से निकल रहे?
बोल रहे हैं जो एग्जाम में मन भगवान का नाम लेके लिख देना। मेरी डॉटर यही करती है, वो भगवान का नाम लेके ABCD वो मार के आती है और सही भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हम उसे पढ़ा तो तुमने नहीं, कहाँ से, बोले भगवान के नाम पे मार दिया मैंने। ठीक है, मतलब तुम्हारी पॉलिसीज अलाइन होनी चाहिए, तुम्हारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक मतलब सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राइट। क्या क्या लिखा? टेक्नोलॉजी, वो सब तो पता ही है। फिर लिखो राइट, लिखो ईरान इट्स, ये इनका नहीं, जनरल लिखो राइट। ईरान इट्स सेल्फ अंडरस्टैंड्स that India's Qibla is Washington. Qibla, QIBLA. Qibla मतलब वर्शिप प्लेस होगा शायद, है वही होगा। हाँ, डायरेक्शन ऑफ इज वॉशिंगटन। नेक्स्ट लिखो श्रीनाथ राघवन। इनके हिसाब से राइट, इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ ईरान। ये हिंदू में लिखते होंगे ना? ठीक है, सेकंड लिखो राइट। नेक्स्ट, साउथ ब्लॉक has centered on energy. Next, South Bloc always missed that Iran is potentially significant power because of its location in Central Asia, Caucasus, West Asia and Gulf. Next, Iran has been an arena of great power rivalry. Next, US efforts to weaken Iran never worked. Right, today Iran is much stronger in Syria, Gaza, Bahrain, Lebanon and Qatar. Next, right, India lacks leverages
comma, continues to remain on the margin of evolving geopolitics. इनका व्यू अच्छा है, कुमारस्वामी, PR कुमारस्वामी का लिखो, ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है इंडिया ईरान रिलेशंस को. देखो, इंडिया ईरान आर कैन, CAN कैन, टैंक, TANK, EROUS, कैन टैंकरस पार्टनर्स. अब हम भी भूल गए, कुछ था गड़बड़ वाला. ठीक है, इंडिया एंड ईरान, ये अच्छा वर्ड है. कैन टैंकरस पार्टनर्स, CANTANKEROUS. जरा देखना एग्जैक्ट, हम भी भूल गए. ठीक है, इसमें लिखो राइट, मतलब अनकंफर्टेबल टाइप कुछ तो गड़बड़ वाला था. देखो राइट, राइट, दे आर always negotiating but never agree, comma, each time break friendly understandings, each time it breaks friendly understanding. Iran is irritating and keeps on raising ant, ANTE, raising ant, ANTE, कुछ फ्रेंच वर्ड होगा. हाँ, raising ant, ANTE, ANTE. एक और लिखो इनका, सी राजा मोहन का, अगर ट्राइंगल पे आएगा ना तो लिखो सी राजा मोहन. हाँ, कुछ खास नहीं है बट ऐसे लिखो. राइट, राइट, द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया ईरान रिलेशंस इज नॉट USA बट सऊदी अरेबिया. Though the public discourse is about USA. और एक क्लास लिखो, क्रिस्टोफी जेफरी लॉट. है तो ईरान सऊदी अरेबिया में इतने बड़े टेंशन है. मतलब अगर एक एंगल आता है ईरान US ट्राइंगल, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सऊदी अरेबिया वाला है. अब लिखो क्रिस्टोफी जेफरी लॉट लास्ट. इंडिया ईरान relations are problematic because Iran will never leave Pakistan. US-Iran conflicts will never end. Iran's position on Israel and Kashmir are troublesome. अब तो ईरान वाला लिख ही लोगे, ट्राइंगल.
अब एक और लिखो रहे, इज इजराइल इंडियाज नेचुरल एलाई? वाजपेयी जी मर भी गए तो पता नहीं, पूछ लें दोबारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज नेचुरल एलाई डिनोट्स? A strong convergence. ठीक है, लिखो राइट। वाजपेयी called Israel India's natural ally. Whereas Manmohan Singh called natural partner. है सबके लिए, वो इजराइल यूएसए की। तुम्हारे हिसाब से क्या नए नए शब्द ढूंढते रहे? वो या पार्टनर, इन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूट किया। ठीक है, अब फिर लिखो राइट, इंडिया इजराइल पार्टनरशिप is also too much hyped. High on optics, less on substance. ठीक है, अब देखो challenges. Right, since 2010 they are negotiating free trade agreement. Next, right, there is a lack of direct flight because of lack of cooperation from West Asian countries. Making commerce costly. Next, India is unable to support Israel where Israel needs India the most. Israel needs India's support the most. For example, at United Nations. Next, India's dependency on Gulf is higher. First लिखो energy, 80% requirement, 7 million diaspora, 40 billion remittances. इजराइल वाले तो कमा के ले जाएंगे और गल्फ वाले दे रहे हैं 40 बिलियन, बिलियन, हाँ मिलियन थोड़ी, बिलियन है ना, सारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कुछ था। 40 बिलियन रेमिटेंसेस। नेक्स्ट लिखो राइट। अब ये इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं निकोलस ब्लैरल। निकोलस NICHOLAS, निकोलस ब्लैरल
BLAREL. लिखो राइट. पहली चीज राइट, द रिलेशनशिप will not develop a strategic convergence या strategic depth because first, difference in a strategic situation. Next, difference in world views. Next, lack of common enemy. Right, next paragraph. To this we can add Israel's relations with China. यहाँ पे एक अच्छा लिखो, मतलब एनालिसिस है कि राइट, इंडिया हैज़ टू treat, TREAD, treat with Israel cautiously. Full stop. इसका second point लिखो. India is placed in such a strategic environment that it cannot pursue any strategic alliance. Next, India has to manage, ये और भी कहीं यूज कर सकते हो, manage multiple coalitions at the same time. नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रीजनल प्रेशर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया. will always force India to take neutral stand. Next, right, we cannot expect paradigm shift. नेक्स्ट पॉइंट भी और भी इंपॉर्टेंट है, लिखो राइट, द प्रेजेंट इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इजराइल, मतलब मोदी और नेतान्याहू ब्रोमांस जिसको बोलते हैं, इंक्लिनेशन इज आइडियोलॉजिकल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, रादर देन स्ट्रेटेजिक. बात समझ में भी आई तुम लोग के? क्योंकि इनकी एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है या वो हिंदू राष्ट्र आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल को स्ट्रेटेजिक समझ रहे हैं. ठीक है, मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, वो आइडियोलॉजी का रीजन है. हाँ, अब नेक्स्ट एक और लिखो राइट, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशंस विल रिमेन ट्रांजैक्शनल, विल ऑलवेज रिमेन ट्रांजैक्शनल. वैसे भी जूस वाले लोग बिजनेसमैन ही हैं, गुजराती, वेस्ट एशियन गुजराती है. अब लिखो, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द करंट पॉलिसी.
right? Despite utterances like marriage made in heaven, realized on this earth. Marriage made in heaven, realized on this earth, comma. First, India cannot leave the Palestinian cause. Though Arabs themselves have left. Next, India continues to support two-state solution. Palestinians' right to coexist in peace. Next, India did not support US action recognizing Jerusalem as Israel's capital. Comma, voted in favor of the resolution in General Assembly. Next, though Modi is the first Indian Prime Minister, though Modi is the first Indian Prime Minister to go on a standalone visit, yet, first लिखो right, visit to Israel came after visit to Gulf countries. Next, before going to Israel, invited Mahmoud Abbas to New Delhi. Next, right, again visited Palestine. तब वहाँ नहीं गए ना इजराइल. Again visited Palestine and Jordan. Palestine, Jordan and Iran शायद. हाँ? Palestine and Jordan. याद नहीं मतलब. तो दोनों को पता है ऐसी बातें चल रही हैं. तो रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शनल, आइडियोलॉजिकल, ये दो शब्द याद रखना है. नेचुरल एलाई, यहाँ पे लिखो राइट, व्यूज ऑफ अशोक सज्जनहार. अशोक सज्जनहार, देखो पर्सनल केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. But plays role. Personal chemistry is important, but it plays role when there are lot of mutual interests. मनोज जोशी लिखो. Right, India's vote against Israel.
show the limits of strategic convergence. पैलेस्टीनियन कॉज एक तो अपने यहाँ मुस्लिम सेंटिमेंट्स, दूसरा गल्फ वालों का सेंटिमेंट, फिर तीसरा ये है कि पैलेस्टीनियन कॉज जब तक रिजॉल्व नहीं होता, दैट इज़ अ मदर ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कोई चांस नहीं है दैट विल कंटिन्यू टू बिकम अ रीज़न फॉर वन और द अदर इंस्टेबिलिटी। लेजिटिमाइज कर देता है ना आईएस और इन सब के रोल को, तो सोल्यूशन चाहिए वहाँ का। अब दूसरा है कि पैलेस्टीनियन वाले जाएंगे कहाँ, रहना तो वहीं पे है। हाँ, वो तो गांधी के टाइम का व्यू था वो। अब लिखो, डिस्कस करंट स्टेट ऑफ यूएस रशिया रिलेशंस। वर्ड व्यूज पता नहीं इनको क्या लिखा है, आई डोंट नो, तो याद कर लो। हाँ, पार्डन, मे बी दैट सेक्युलर वर्सेस जूइश वाला इशू होगा। अब लिखो, डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ यूएस रशिया रिलेशंस। नहीं लिखना। डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ यूएस रशिया रिलेशंस in context of the recent summit between Trump and Putin. Right, इसी में लिखो, do you think USA has a grand strategy? To deal with Russia अब फिर को, what is the impact of US Russia relations on India's strategic interests? ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 1, रशिया इज अ परमानेंट चैलेंज टू यूएस हेजेमनी। नेक्स्ट, प्रेजेंट प्रायोरिटी इज चाइना। Next, Henry Kissinger proposed US-China axis to deal Soviet challenge. Next, it is believed that Kissinger has proposed US-Russia
access to challenge rising China, right in bracket 99-year diplomat, मतलब 99 ईयर है उनका, कुछ तो तजुर्बा रखते ही होंगे डिप्लोमेसी में के ईयर ओल्ड फॉर्मर डिप्लोमेट, और 97-95 की उम्र में किताब भी लिख दी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यूथनेसिया प्रपोज करना पड़ेगा, ठीक है उसके लिए। अब नेक्स्ट लिखो राइट राइट however it seems that US lacks grand strategy. लिखो why. Right, there is opposition to Trump's policies. Not only from Democrats, but even Republicans. Next, right, US-Russia relations reflect the similar mindset which prevails between India and Pakistan. Right, next, pursuit of rivalry even at the cost of substantial gains. Right, next, it seems Trump wanted to start the new phase but his actions has been constrained because of domestic opposition. Lico right, why it becomes important to improve relations. Right, first, right, though Russia is developing axis with China, but Russia also understands the threat. Understands the threat. Next, New START treaty. चाइना का क्या भरोसा, सब कहें ये साइबेरिया भी हमारा है, बोले मॉस्को भी हमारा है, ले गए, तो इन लोग का कोई भरोसा थोड़ी, और एम्बिशन बढ़ता ही चला जाएगा। बॉर्डर डिस्प्यूट है, वॉर हो चुकी है, 60s में हुई थी ना बॉर्डर वॉर, तभी तो सिनो सोवियत फिर रिफ्ट हो गया था। एक से एक दुष्ट लोग हैं, चाइनीज, ईरानियंस, इनके साथ डील करना, उससे तो यूएस वाले अच्छे हैं, बेटर लोग हैं, फिर भी थोड़े से रीजनेबल है ना, ये सब बारबेरियंस है ना ये लोग।
है? और फिर ये लोग हमेशा बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहे हैं ना, तो इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स काफ़ी हैं स्ट्रॉन्ग। उल्टा इनके कंपैरिजन में यूएस नोविस लगेगा, क्योंकि यूएस ने उतने चैलेंजेस फेस नहीं किए होंगे जितने ईरान और चाइना इन लोगों ने किए होंगे। फिर चाइना इतना बड़ा सिविलाइजेशन भी है, कंटिन्यूटी विजडम तो रहेगा ही ना चाइना में। अब आगे बढ़ो। Yes, New START treaty entered by Obama administration is going to expire. कब पता है? 2021। ये एक रीजन है। So Russia wants to renew. Russia wants to renew. Next. न्यू स्टार्ट ट्रीटी आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिप्लॉयड वेपन्स। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड रीजन क्या है? राइट, बोथ वांट solution to crisis in Syria, which is not possible without cooperation. अरे तो अलग आंसर में लिख दो, कई कई हिस्टोरियंस ऐसे भी कहते हैं ना, सीरिया की क्राइसिस यूएसए के हिसाब से सॉल्व नहीं होगी जब तक रशिया सपोर्ट नहीं हटाएगा, और रशिया के हिसाब से सीरियन क्राइसिस क्या है? मेन प्रॉब्लम है दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग एंड्स बट दे बिलीव कि एक कॉमन थ्रेड भी है ना, ISIS। देयर आर मल्टीपल डिस्कोर्सेस बट फिर एक और भी तो है। नेक्स्ट क्या है? यस, नेक्स्ट लिखो। राइट, Putin's and Trump's nationalistic approach has huge convergence. Next, it is said that Trump has liking for authoritarians, strong men. Trump has liking for strong men like Putin, Kim, Erdogan, ये सब पता नहीं, मोदी, क्या ठीक है। तो अब क्या पता क्या चल रहा है। नेक्स्ट, और क्या क्या था? यस, यस, फिर एक और लिखो। राइट, अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन, दे हैव convergence as far as disliking for the holiest of Western institutions are concerned. Western institutions are concerned, like NATO, EU, G7, WTO, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो। राइट,
अब लिखो राइट एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर, actual state of affair. Right, this is not the first time US president looked for rapprochement. ठीक है, right, however the honeymoon period never lasted long. ठीक है, तो राइट, दो ट्रम्प promised Helsinki is a historic movement, will be a historic movement to be a historic movement, but because of domestic opposition, no change in actual state of relations. लिखो राइट, had relations improved, India would have been the major beneficiary. ठीक है, अब लिखो प्रेजेंट स्टेट ऑफ रिलेशंस, कैन इट बी कॉल्ड एज कोल्ड वॉर? प्रेजेंट स्टेट, कैन इट बी कॉल्ड एज कोल्ड वॉर? तो इसमें पहले डिफाइन कर देना व्हाट वाज कोल्ड वॉर. व्हाट वाज कोल्ड वॉर? इसमें पहला लिखो, अ ग्लोबल सिस्टम of countries centered on USA and USSR. Next, right, its core was ideological contest. Next, it was a bipolar system of total defeat and total victory. Right, it was intense, categorical, highly dangerous, system of nuclear weapons. आप लिखो प्रेजेंट इंटरनेशनल रिलेशंस. इसमें व्यूज लिखो माइकल मैकफॉल, MICHEL, मैक MCFAUL, माइकल मैकफॉल. ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, ब्रैकेट में लिख दो फॉरेन अफेयर्स. MCFAUL, फॉरेन अफेयर्स एक जर्नल है, उसमें लिखते हैं. लिखो राइट. Today's international affairs are in large part murky
MURKY, murky and challenging, yet far from Cold War absolutes. Full stop, right? Calling 21st century power rivalry as a new Cold War is intellectual laziness. Calling 21st century great power rivalry as a new Cold War is intellectual laziness, comma, it obscures more than it reveals. Full stop, right? Though Cold War legacies are continuing, but conduct of and determinants of international relations has changed. First, bipolarity has gone. Next, ideology no longer determinant. Next, no disagreement on capitalism and market. Next, authoritarian Russia and China. Are pretending to be democratic. Right? Next paragraph. Whatever system is created is certainly confrontational, conflict ridden, but every war is not a Cold War. It is a false analogy. ठीक है, but it is not a Cold War. Cold War is used for ideological capitalism versus communism. है ही नहीं. डिमिट्री ट्रेनिन वेनिन तो बोल रहे हैं, वो नोट्स में लिखा तो है, लेकिन यही तो सही बोल रहे हैं. उनका भी बता देंगे, पहले जल्दी खत्म करो. अब ये स्कॉलर तो तुम लोग यूज नहीं कर पाओगे. हान हिमाकी है कोई, ठीक है. नेक्स्ट ऐसे लिख दो, इन जनरल. जो बोल रहे हैं उनका भी बता दे रहे हैं, पहले लिखो. राइट, ऐसे लिखो. राइट, इट इज सेड दैट, स्कॉलर का नाम तो याद नहीं कर पाओगे. लिखो, इट इज सेड दैट वी इवोक कोल्ड वॉर टू ऑफन. As our era lacks meaning or proper nomenclature.
right? Usage is driven by nostalgia for an era. ठीक है, for an era which appeared simple, straightforward, in comparison to the current era. करंट एरा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई टर्म ही इन्वेंट नहीं कर पा रहे. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू द करेंट एरा. ठीक है, अब कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं उनका अच्छा लग रहा है तो उन्हीं का लिखो. देखो, एक तो इनका क्या नाम है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस. इनका भी लिखो एंटोनियो गटरेस, GUTTRESS. Right, Cold War is back. Cold War is back with vengeance. ये वाले व्यूज पहले लिखना. मैकफॉल तो इम्पॉर्टेंट थिंकर है, उनके बाद में लिखना. नेक्स्ट लिखो मनोज जोशी. मनोज जोशी, right? A new and more dangerous phase of Cold War is building. As both are developing new generations of weapons. For example, Russia is developing hypersonic ICBM capable of carrying nuclear payload. और फिर है डिमिट्री ट्रेनिन, DMITRI, डिमिट्री ट्रेनिन, TRENNIN. राइट, न्यू कोल्ड वॉर. फिर वो क्लास में नोट्स में लिखा होगा वही सीरिया वीरिया ये सब. पुतिन जी का क्या कहना है, लिखो. राइट, पुतिन, पुतिन भी बोलते हैं, पुतिन. राइट, इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर हेलसिंकी मीटिंग, पुतिन सेड कोल्ड वॉर इज अ थिंग ऑफ द पास्ट. ट्रंप ने भी बोल दिया, रिप्रेजेंट जंक मेंटेलिटी. जंक मेंटेलिटी, बाहर आओ ये सबसे. ट्रम्प दोनों ही कह रहे हैं ना, एक थिंग ऑफ द पास्ट है, जंक मेंटेलिटी है, उसी के ऊपर लटक के बैठोगे. इसमें लिखो हर्ष पंत, हर्ष वी पंत. डिट्यूरोरेटिंग US Russia relations. Put considerable strain on India.
right, certain amount of stability in their relations. Is necessary for wider global good. फिर लिखो, right, relationship cannot be repaired but it can be managed from getting deteriorated. लिख सकते हो, right, it is to be noted that after Helsinki summit US Senate has imposed has passed a new bill imposing crushing sanctions on India, on Russia. Crushing, काटसा यही है। तो पहले क्या था, पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से था, अब ये लेजिस्लेटिव एक्ट बना दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ो, बाकी देखते हैं नेक्स्ट संडे। कभी नहीं किया ये वाला विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज इन्वॉल्व एज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हम ये रेलिवेंट है, वापस डिस्कस पॉलिसी इनिशिएटिव। बहुत आसान है ये तो। वो सब पुराना हो गया, अभी नया मतलब सिंस मोदी में इतना